स्लाइड दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay, good. So let's start. As you know that we are in Unit 6 now, and under Unit 6 we are trying to learn frequency response analysis. We already discussed about the introduction part. Why do we want frequency response analysis, and what is the advantage of frequency domain analysis over time domain analysis? And we also talked about frequency domain specifications. And just to demonstrate the stability, like we had tools root locus in time domain, here we have a tool in edge. Let me admit tool. Okay, so as I was saying that under frequency response analysis, we have a tool, graphical tool, to demonstrate the stability of the system or to comment on the stability. And then today we also will try to learn the concept of gain margin and phase margin, and then we will see how stability is analyzed from Bode plot. So essentially in unit 6 we are trying to learn these concepts. So let's start. So we know this Bode plot is a graphical tool which helps in understanding the frequency domain techniques. Second. Okay, right. So just we'll have the quick review uh, of previous lectures so that we can gear up for the next concept. So if you remember, I said Bode plot is about plotting magnitude and phase angles together in logarithmic scale. So magnitude of any open loop transfer function will be m equals to 20 log of magnitude of open loop transfer function. What I'm trying to do here is I'm replacing s with j omega. I have told you many times. So this j omega is nothing but replacement of s. So earlier we used to write g of s and h of s. So in frequency domain we will write g of omega and h omega. It's omega actually, which is a representation for frequency, and phase angle will be angle of this j omega h j omega. Once again, it's like in complex number also. While studying in mathematics course, you used to find magnitude and phase for the transfer function, or I mean like complex numbers. So it's almost similar. And then I told you that these are the building blocks for understanding the Bode plot. When you have single units like only gain, so your j omega is only gain, then your slope will be 0, magnitude will be 20 log k, because the magnitude of k is nothing but k, phase angle is 0 because here your complex term is missing, I mean imaginary term is missing. So you can write k plus j times 0 and phase angle will become 0. So the whole idea of showing you or introducing these units to you is that essentially any transfer function, if you see, let me draw it here. So any transfer function if you write, let's say g j omega h j omega, please see it carefully. This is k times, let's say it is s plus 1 or s plus 2, s plus 3 and s. Let's say it is something like that, or you want to make it even s here or s square, s cube, whatever you want, you can make it. Okay. So the idea of writing here is, let's make it s cube. So you see now this open loop transfer function has gain k. It also has 0 at the origin s, and it has 0 at -1. It has 3 poles at origin, that's why it is s cube. It has 2 poles at -2 and -3 location. Now you see, if we are trying to plot Bode diagram for this particular specification,
So essentially, it contains the information of this individual k. It contains the information of j omega, because if you replace s with j omega, it will become k j omega 1 plus j omega, like that. So now you see it has a component of this, component of this also, 0 at origin, and it also has n poles at origin. I mean 1 by j omega to the power n, and simple 0 s plus j omega 1 plus j omega, and simple pole 1 by 1 plus j omega 2 j omega tau. So that's why if you do the individual analysis of, let's say again, 0 at origin, 0 at finite place, multiple poles at origin, poles at finite places like at -1 and -3. तो ये क्या होता है लॉगरिथमिक स्केल में, क्या होता है, जैसे यू नो द एडवांटेज ऑफ लॉगरिथमिक स्केल इज दिस, log a b, a times b, essentially we write log a plus log b, right? तो क्या होगा कि ये सिंपल सा एडिशन होता है, हमको इसका ग्राफ पता है, प्लॉट इसका प्लॉट पता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। log a by b अगर होता है तो फ्रॉम आवर मैथमेटिकल नॉलेज वी राइट log a minus log b, right? 20 times है तो इट इज अफेक्टिंग योर मैग्नीट्यूड अलोन, बट दिस इज हाउ लॉग स्केल वर्क्स। तो देखो इसमें कितना सिंपल हो जाता है कि ये वाला जो चीज़ है के, you can always write log k plus log of s plus log of s plus 1. Of course you have to change s in terms of j omega, but just for your understanding, minus 3 log s again minus log of s plus 2। ये बहुत ही सिंपल है, log s माइनस थ्री सी। अभी हमको इंडिविजुअल पता है log k का क्या होता है, मतलब अगर k सिर्फ है मेरा, वी नो द बॉडी डायग्राम ऑफ k, वी नोट द बॉडी डायग्राम ऑफ दिस 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 दिस। तो अगर मान लो कि ये मेरा बॉडी डायग्राम ऑलरेडी है, इसमें मैंने ये ऐड कर दिया log k, तो ये जितना इसका वैल्यू हो उतना टाइम ये शिफ्ट कर जाएगा, इट विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, दैट क्वांटिटी विल बिकम log k। तो ग्राफिकल प्लॉट में हम सिर्फ एडिशन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग वेरी सिंपल when you work with logarithmic scale. Coming to the next, simple pole and second order derivative term, second order integral term, and then I also discussed about the each individual part which were important. तो अगर तुम्हारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ k है, then you find the magnitude of this transfer function and phase of the transfer function। तो magnitude इसका k है और phase angle इसका 0 है। अभी now it depends on the value of k, if k is equals to 0 then magnitude will be 0, greater than 1 it will be positive, it will be negative। एक और चीज़ जो आज हम नया डिस्कस करने वाले हैं वो आई विल शो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट विल टेक एनी वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी whichever comes, I mean for all the frequency it has only one gain k, k can be 0, greater than 1 and less than 1, ठीक है। और किसी भी ओमेगा के लिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो के लिए 0 पे लाई करता है, ये 0 डिग्री। ओके, नाउ कंसीडर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डी एस एच एस इक्वल्स टू एस, राइट, ये है, सॉरी। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैन समबडी टेल दैट व्हाट इज द फिजिकल इंटरफेरेंस ऑफ दिस वन एस, क्योंकि वी आल्सो शुड अप्रिशिएट एस का मतलब इसमें क्या है। सो कैन समवन टेल when your transfer function is equals to only s, so what will be there, I mean what is the physical interpretation of that? Just try, I'll answer you. Chalo, I'll give you an option. So s equals to s, I mean gs hs equals to s. Option number A, it represents differentiator, it represents integrator, or it represents gain. A, B, C. A is differentiator, B is integrator, and C is gain. So which one is correct? A, B, or C?
पीआईडी कंट्रोलर में हम लोगों ने पढ़ा है ना, पीआईडी। पी है प्रोपोर्शनल, आई है इंटीग्रल और डी है डेरिवेटिव, राइट? तो जब जी एस एच एस इक्वल्स टू 1 होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, so Palani, could you tell वो जी एस एच एस इज इट डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर और गेन, क्या है ये? डोंट वरी अबाउट योर रॉन्ग आंसर, अगर गलत भी होगा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Differentiator. वेरी गुड। सो पलनी सेड दिस इज डिफरेंशिएटर। क्यों? क्योंकि अगर देखो टाइम डोमेन में डी एक्स बाई डी टी अगर है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस होता है। तो वेरी गुड, दिस एस एसेंशियली रिप्रेजेंट्स योर डिफरेंशिएटर। और लाप्लास डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन के टर्म्स में एस जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर यहाँ पे 1/s रहेगा तो इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेटर और इट सेज दैट दिस इज the root is at the origin. So very good. So now you see that we are trying to do the analysis of this one, and the whole idea of doing individual transfer function analysis is कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हम चूज करेंगे इन फ्यूचर, दे विल बी एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ गेन, origin, जीरो at origin, pole at origin, जीरो at origin और at finite places, फाइनाइट जीरो इसको बोल दो, फाइनाइट पोल्स बोल सकते हैं, इसी का कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होगा तो दे विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ गेन, जीरो एट ऑरिजिन, फाइनाइट जीरो, फाइनाइट ऑरिजिन, पोल एट ऑरिजिन, फाइनाइट पोल्स और मल्टीपल जीरो एट ऑरिजिन और मल्टीपल पोल्स एट ऑरिजिन। इसी के कॉम्बिनेशन से ट्रांसफर फंक्शन बनता है। तो इफ वी नो दैट व्हाट इज द बॉडी प्लॉट ऑफ दिस, व्हाट इज द बॉडी प्लॉट ऑफ दिस, व्हाट इज द बॉडी प्लॉट ऑफ दिस, दिस दिस एंड दिस, then we can also know the body plot of overall transfer function which we will learn soon. तो ये है। अभी देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या आता है कि जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू एस, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे जी ऑफ ओमेगा जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू जे ओमेगा, राइट? तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरा 1 है। क्यों 1 होगा? क्योंकि ओमेगा का जो मल्टीपल है वो यहाँ पे आता है। और लॉगरिथमिक स्केल में क्या होता है ना कि जहाँ से तुम्हारा ग्राफ चेंज करना शुरू करेगा, जैसे मान लो कि अभी मैंने इसका ये प्लॉट किया तो ओमेगा इक्वल्स टू ये है 0.1, यहाँ पे कहीं होगा 1 इधर होगा, 10 इधर होगा। तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे क्या है, ये -20 dB है, 1 पे क्या है 0 dB है और 10 पे क्या है 20 dB है। तो इसका देखो कैसे प्लॉट बनता है। जैसे ये 0.1 था तो ये -20 dB इसका आ गया गेन, 1 पे 0 आ गया और 10 पे +20 आ गया। तीनों को हमने लाइन से मीट करा दिया ऐसे करके, ये ऐसा आ गया। 5 में फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, क्योंकि इसका जो फेज है वो एस मतलब क्या हुआ 0 + j ओमेगा होता है। फेज होगा तुम्हारा ओमेगा बाय 0 tan इनवर्स और 10 थीटा। तो इस इन्फिनिटी तो एंगल विल बी 90 डिग्री, यहाँ से आता है 90 डिग्री। तो फॉर वट एवर वैल्यू यू टेक ऑफ ओमेगा इट विल गिव यू नेगेटिव फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा, तो दैट्स व्हाट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया, ये फेज प्लॉट हो गया उसका। Consider the open loop transfer function. ये this is also a representation of open loop transfer function with finite zeros. इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मैंने ये एक्सप्लेन किया होगा बट अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दोस्त। तो इसका देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगा, ये 1/tau पे आएगा। तो 1/tau से छोटा जो है ओमेगा उसके लिए मैग्नीट्यूड 0 होगा, 1/tau ग्रेटर है तो ऐसा होगा। लेकिन ये देखो ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट
बोडे डायग्राम, बोडे डायग्राम, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रेट हमने ले लिया कि 1/tau से छोटा होगा तो 0 होगा, 1/tau से बड़ा होगा तो इसका ये होगा 20 dB 0, और इसके बाद 10/tau के लिए 20 होगा। ये हमने मिला दिया यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि ये इतना, इसका जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा इतना शार्प नहीं होगा। इफ यू टेक द वैल्यू, बेस्ट वे वुड बी लाइक दैट, you write g j omega h j omega equals to 1 plus j omega, सॉरी अगर 1 plus j omega है तो ऐसे लिख दो। अभी देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लो ये 1 plus ओमेगा स्क्वायर है। अभी ओमेगा का वैल्यू हम पुट करेंगे, लेट से जी हमने स्टार्ट किया 0 से, 0.01 से स्टार्ट किया, फिर 0.02 होगा एटसेट्रा। इट कैन टेक वैल्यू ऑफ एनीथिंग, 0.09 होगा, 0.1 होगा, फिर 0.1 5 कर दो, ऐसे करके। तो ये जो इस तरह से हम इसके नंबर्स लेंगे ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा ये। तो इसका एक्चुअल बॉडी डायग्राम जो होगा वो इतना शार्प नहीं होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस रादर देन लुकिंग लाइक एट शार्प दिस वन, ऐसा नहीं होगा। और इसका भी जो फेज होगा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक दिस इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे करके। तो ये होता है एक्चुअल बॉडी डायग्राम, और ये है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो अभी रूल देख लेते हैं बॉडी प्लॉट का कंस्ट्रक्शन का रूल। तो रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी प्लॉट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन द स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि 1, अगर मेरा s+1 है ऐसे, तो इसको हम लिखेंगे 1 plus s इक्वल्स टू 1 plus j ओमेगा, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो हम दिखाएंगे अभी। तो सब्स्टिट्यूट j f इक्वल्स टू j ओमेगा, राइट। s को रिप्लेस कर दो j ओमेगा से, क्या कर दिया। देखो ये एक्चुअली क्यों ऐसा करते हैं हम, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता था पहले वो ऐसा होता था, लेट्स से s/s+2 s+3 ऐसे करके, इसको s+1 कर दो। तो ये एक सिंपल ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है। जब हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म, तो ये होना चाहिए 1 plus tau s, ये होता है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो ये जो 1 plus s+1 है ये तो ठीक है। तो इसी ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, लेट मी शो यू दिस वन एक्चुअली। हम MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में करते हैं। तो ये पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, you can always interrupt me in between if you have any difficulty in understanding। तो देखो ये so now what we are trying to understand, we are trying to understand this one, transfer function in time constant। तो मान लो कि एक ट्रांसफर फंक्शन ऐसा है, p of s इक्वल्स टू s+1 डिवाइडेड बाय s+2 बाय s+3। ये वी आर नाउ सो मच यूज्ड टू सीइंग दिस वन। तो इसको कुछ और मान लो 5 दे दो ये। तो देखो कि ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसमें पहले अगेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ इट फिजिकली। इसको हम बोलते हैं गेन, दिस इज योर गेन। ठीक है, -1 जो है इसको हम बोलते हैं 0, -2 और -3 जो आएगा इसको हम बोलते हैं पोल्स। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में उसके गेन होते हैं, जनरली जीरोज होते हैं और पोल्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे s अगर है तो हम बोलेंगे पोल एट ओरिजिन। अगर यहाँ पर s होगा तो वी से पोल एट जीरोज। अभी दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में तो हम क्या करेंगे,
कि टाइम कांस्टेंट फॉर्म जो होता है ये होता है 1 प्लस टाउ एस, ये होता है। तो हर एक ब्लॉक को हम इसी टाइप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 हो गया, इसको हम 1 प्लस एस लिखेंगे विच इज एसेंशियली टाउ मीन्स 1, तो टाइम कांस्टेंट इसका 1 है। यहाँ पे क्या होगा एस, उसके बाद 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 1/2 एस विच इज 0.5 एस, ये हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, इट विल बिकम 1 प्लस 1/3 0.33 रफली एस, ठीक है। तो इसका जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो ऐसा आएगा, 5 टाइम्स 1 प्लस एस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3 6 एस 1 प्लस 0.5 एस टाइम्स 1 प्लस 0.33 एस। तो ये हो गया 5/6 विच इज हो जाएगा 0.831 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 1 बाय एस टाइम्स 1 प्लस 0.5 एस 0.33 एस, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बॉडी प्लॉट का जो फर्स्ट स्टेप है, whatever open loop transfer function you have, try to convert that in time constant form, ठीक है। ये है कमिंग टू द लेक्चर। कोई डाउट यहाँ पे? आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड क्या है कि सब्सटीट्यूट एस इक्वल्स टू जे ओमेगा इन द एबव इक्वेशन। तो इसका ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, प्लीज सी इट केयरफुली बिकॉज इट विल बी वेरी मच यूज्ड। जे को रिप्लेस करना है, एस को रिप्लेस करना है जे ओमेगा से। तो इसका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा दैट इज 0.831 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय जे ओमेगा 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा 1 प्लस 0.33 जे ओमेगा, राइट। ऐसे मतलब सिर्फ एस को ना जे ओमेगा से रिप्लेस करना है एंड दैट इज ऑल। So step 1, convert the standard transfer function in the form of time constant form. Step 2, convert s in j omega. ये हमने कई बार पहले किया है, but just I was repeating it. Okay. Now find the corner frequency and arrange in ascending order, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि ये जो इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ये होगा 1, इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो है 0.5, ये टाइम कांस्टेंट ये है 0.3, इसको हम देखेंगे अभी। तो ये हो गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और कंसीडर द स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी प्लॉट एज 1/10 ऑफ द मिनिमम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या बोल दिया, इसका गाइडलाइन क्या है कि लॉ के स्केल में क्या होता है ना कि ये और ये, तो जो स्टार्टिंग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जो बॉडी प्लॉट का स्टार्टिंग होगा, अगर मान लो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसका 1 है तो हमें स्टार्ट करना चाहिए 0.1 से, फिर ये 1 होगा, फिर ये 10 होगा, फिर ये 100 होगा। तो लॉगरिथमिक स्केल में 10 का जो स्केल चलता है वो ऐसा चलता है कि 10 यूनिट से इसका ऐसा रहेगा, इसका पहले वाला जो सेगमेंट होगा 1/10 होगा, फिर इसका ये 1/10 ऑलरेडी, इसका ये 1/10 ऑलरेडी है। इट मीन्स इन प्रोग्रेसिवली ये इसका 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा एंड दिस विल बी 10 टाइम्स। तो ये होगा एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विच एवर स्मॉल वैल्यू एंड ड्रॉ द बॉडी प्लॉट अप टू 10 टाइम्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 10 तक है तो 100 तक वी विल ट्राई टू ड्रॉ द मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर ईच टर्म एंड कंबाइन दीज प्लॉट्स प्रॉपर्ली। So now you see the concept which I was trying to explain. Draw magnitude plots for each term. I mean पहले इसका कर लो, इसका कर लो and then इसका कर लो। ये magnitude plot we will draw for this and for this, and then we will combine these plots properly, right? Same for phase plots also. Draw phase plot for this, draw phase plot for this, draw phase plot for this, and combine these plots properly. ठीक है। अभी देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का टर्म यहाँ पे आया था, दिस इज ए स्टार मार्क एंड द डेफिनेशन ऑफ स्टार मार्क इज हियर। द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच देयर इज ए चेंज इन द स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो ये वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो वी विल सी द चेंज एट
0.5, 0.33। तो इसीलिए ये जो हमने देखा ना, can somebody tell me what is the corner frequency of this one? So this is the question for you, corner frequency इसके लिए। तो प्लीज टेल मी, प्लीज एंगेज योर सेल्फ विद द क्लास। तो क्या होगा कि ये इट विल बी रिटेन इन योर माइंड, सो यू कैन परफॉर्म वंस अगेन वेल इन एंड सेम एग्जामिनेशन। चलो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बताओ, इसमें क्या है? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन I'm asking. So I'll give you the option A 0, option B 1 by tau, option C 10 by tau. What is the corner frequency of this plot, magnitude plot में? Corner frequency magnitude plot में, I mean either it is magnitude plot or phase plot, corner frequency will be same. So I should ask you what is the corner frequency of this Bode plot? ठीक है? Anyone? So I'm 1 by tau. yeah, please tell me. 1 by tau. So Palani said the corner frequency is 1 by tau. Anyone else would like to add into it? So if no, then he is right. Because as per definition, corner frequency is the frequency where you see changes in magnitude or phase. तो देखो यहाँ पे जो ड्रास्टिक चेंज है या सडन चेंज है वो इस जगह पे है। So that's why corner frequency for the body plot will be 1 by tau in this case. ये क्यों आया? Now you see how it is coming, because your body plot is for 1 plus tau s, है ना, इसके लिए। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है मेरा, वो होता है 1 बाई टाउ। अगर 1 प्लस 5s है तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर 1 प्लस 5s? एफ ऑफ सी मान लो, तो क्या है इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी? तो इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ segment or this kind of transfer function, individual transfer function, your corner frequency will be 1 by 5. Okay, तो ये अगर अभी तो हमने 1 प्लस टाउ एक जेनेरिक प्लॉट दिखाया, अगर ये 1 प्लस 5 एस होता तो दैट नंबर वुड बी योर 1 by 5 and that would be your 1 by 5 times 10 which is 2. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. So in case of any difficulty or any doubt, you can always ask the question. Okay, we will see the example, and before showing you the example, we are going to introduce 2 more terms, rather 4 more terms, that they are gain. Let me use this acronym: GCF, PCF, GM and PM. So this is your gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin and phase margin, right? So we will try to understand these 4 terms. And कोई भी कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में बॉडी प्लॉट की बात करेगा, एनी कंट्रोल researcher or control engineer, they will always talk about these 4 terms, and they are gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin and phase margin. Please try to understand these 4 word terms very carefully, because they are also related to your stability analysis, right? So let's see. So from the Bode plots of transfer function, open loop transfer function, we can say whether system is stable, marginally stable and unstable. तो हम सिस्टम पे ये कमेंट कर सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम है, either they are stable, marginally stable or unstable. हम इस पे कमेंट करेंगे, ठीक है? But now question comes, how will you comment on the stability of the system? How will you tell the system is stable, marginally stable or unstable? तो उसी के लिए we are going to study the concepts of these 4 things. So GCF
PCF and gauge margin and phase margin. Let's see. So gain crossover frequency क्या होता है? The frequency at which magnitude plot is having the magnitude at zero. ठीक है? The frequency at which magnitude plot is having a magnitude of 0 dB is known as gain crossover frequency. तो यहाँ पे बताओ कि GCF क्या है? We'll go to back. यहाँ पे GCF क्या होगा? Gain crossover frequency. So please tell me. चलो मैं अभी आप लोगों के पास आता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट इज द इशू यू आर फेसिंग. So yes, so we have Nikhil, Jill, Harshil and Palani Rajan. Please tell me gain crossover frequency. सबको समझ में आया gain cross frequency क्या होता है? I'll repeat that. Gain crossover frequency वो frequency है जहाँ पे magnitude 0 dB को क्रॉस करता है. जिस frequency पे magnitude plot 0 dB लाइन को क्रॉस करता है, that is gain crossover frequency, right? Just see it here. चलो मैं एक और प्लॉट बना देता हूँ for your understanding. We are trying. Let's try to understand live view. ये लेट्स से ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये है 0.1, दिस इज 1 एंड दिस इज योर 10. ये इट कैन बी ओमेगा और log ओमेगा. दिस इज योर मैग्नीट्यूड. So please tell me what is your gain frequency, gain crossover frequency for this plot. This is Bode plot, right? ऐसे करके. This let's say you can give name 20 dB minus 20 dB. Definition once again we will see. The frequency at which the magnitude plot is having a magnitude at 0 dB is known as gain crossover frequency. It is denoted as omega GC. Phase crossover frequency क्या होता है? The frequency at which phase plot is having a phase of minus 180 degree is known as phase crossover frequency. This is denoted as omega PC. तो बताओ क्या होगा? You can also plot for phase. Let's say minus 180 degree line इधर है, ये कुछ ऐसा आ गया. Zero point 1, 1 और 10. Any answer? तो assuming that we are still understanding the concept. देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? ये है फेज प्लॉट, ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट. वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स. तो गेन प्लॉट में क्या होता है कि ये जो गेन वाला लाइन है ना, ये जिस फ्रीक्वेंसी पे 0 dB लाइन को कट करता है, ये तो 0 dB है यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फॉर दिस केस विल बी 1. ये 1 है क्योंकि देखो ये जो लाइन है मैग्नीट्यूड प्लॉट का वो 0 dB को क्रॉस करता है एट दिस 1. तो ये हो गया GCF, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. PCF में क्या होगा कि ये जो फेज प्लॉट है ये क्रॉस कर रहा है इस लाइन को एट 1. योर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी विल बी 1. ठीक है, ये एकदम से सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने और वो बताया. ठीक है,
अभी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन भी हम देखेंगे। तो very interestingly we have understood gain crossover frequency and phase crossover frequency. The unit of phase crossover, of course, radian per second we know because this is quite common from our understanding that unit of omega will be radian per second. Okay. Now अभी हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। तो द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम based on relationship between phase crossover and gain crossover frequency is listed below. देखो अभी क्या है कि इफ द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देन कंट्रोल सिस्टम इज स्टेबल। इसका मतलब ये इस लाइन में अगर हम मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को प्लॉट करें तो फ्रीक्वेंसी जो है PCF, if PCF is greater than GCF तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। इसीलिए हमेशा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना पड़ेगा। इफ द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, हमारे एग्जांपल में दोनों के लिए अगर 1 आ रहा था फ्रीक्वेंसी, देन वी से सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, PCF इक्वल्स टू GCF। इफ PCF इज लेस देन GCF, PCF इज लेस देन GCF, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। अगर मान लो इसका फ्रीक्वेंसी है 0.1, इसका फ्रीक्वेंसी है इसका फ्रीक्वेंसी है 0.9 और 1, then it will be this one. So let's see the example and gain margin. हम gain margin को भी क्लियर करते हैं and then we will straight go to the Bode plot once again. तो gain margin क्या आता है? It is equal to the negative of the magnitude at in dB at phase crossover frequency. देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये प्लॉट कर दिया, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि ये तो फेज प्लॉट हो गया, अगर इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह से आता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आता है। मान लो इट कैन बी द केस। हर्षिल, या प्लीज टेल मी हर्षिल। ચાલુ જ હતી યાર, એક્ટિવા ધોઈ ને એના પછી ચાવી ચાલુ ચાલુ રહી ગઈ। કોઈ લો ને કદાચ હોય તો હા એ તો બરાબર। હા હા I think Hashil is on another call or somehow he unmuted his microphone. So મેં ચેક કર્યું, આ શું કહેવાય એ મીટરમાં તો જોયું તો વોલ્ટેજ 12.5 બતાવ્યું હતું આમાં। So sorry about the disturbance. So let's continue. Maybe Hashil will come back to us once again. तो देखो ये क्या होता है, try to understand this concept. So gain margin we are trying to know now. So it is equal to the negative of the magnitude in which dB at cross over frequency. तो हमें पता है अपने कॉन्सेप्ट से कि ये इसका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। और इसमें जो इस फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए जो मैग्नीट्यूड आएगा ये, दैट इज द मैग्नीट्यूड, राइट। सो इसका जो नेगेटिव वैल्यू का, मान लो कि ये मैग्नीट्यूड आया 20 dB, तो योर गेन मार्जिन विल बी 20 log 1 by MPC, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसका नेगेटिव होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन। तो आई मीन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन इन दिस केस? गेन मार्जिन विल बी योर -20 dB। यहाँ पे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। मैंने क्या किया, गेन प्लॉट और फेज प्लॉट को एक साथ प्लॉट कर दिया। तो एट GCF सॉरी एट PCF फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का जो का वैल्यू है उसका नेगेटिव जो होगा दैट इज योर गेन मार्जिन, राइट। उसके बाद क्या होगा, फेज मार्जिन। द फॉर्मूला फॉर फेज मार्जिन इज दिस वन, 180 डिग्री प्लस 5GC। 5GC का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे फेज प्लॉट क्रॉस गेन प्लॉट क्रॉस कर रहा है 180 डिग्री ऐड करेंगे तो ये इट विल बिकम 180 डिग्री। इसको हम देखते हैं एग्जांपल से, ठीक है। सो दिस इज गेन मार्जिन एंड दिस इज फेज मार्जिन। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे है ये वेरी इंपॉर्टेंटली 5GC द फेज एंगल एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। देखो
ये जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो गेन का प्लॉट है, मैग्नीट्यूड का प्लॉट, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे कट करते हैं उसको जीसीएफ बोलते हैं, गेन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इसमें जो इसका वैल्यू आएगा फेज का, ये कुछ वैल्यू होगा, दैट वैल्यू विल बी एडेड टू 180 डिग्री प्लस 5 जीसी, दैट इज योर फेज मार्जिन। ठीक है, तो गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन वी अंडरस्टूड, वी विल ट्राई टू correlate this understanding with stability। तो stability क्या बोलता है कि if both the gain margin and the phase margin are positive, ठीक है, तीन केस बनेंगे GM PM, they both are greater than 0, then system is stable। if both are 0, GM PM are 0, then this is called marginally stable। ठीक है, if both are negative, GM PM नेगेटिव और एनी वन ऑफ देम आर नेगेटिव, ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव हो या कोई एक नेगेटिव हो इसमें से, तो दैट इज अनस्टेबल। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल पुट स्टार ऑन इट स्टेबिलिटी के लिए। एज ए कंट्रोल डिजाइनर you will be asked to design a control system in frequency domain for specific gain margin and phase margin। तो gain margin तुम्हें मिल जाएगा, phase margin में मिल जाएगा, and you have to design a control system। उल्टा इसका क्या हो सकता है कि यू हैव अ सिस्टम, इफ यू वांट टू डू द एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी। सो बाय नोइंग गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन वी कैन टेल दैट वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। ओके, तो देखो, अब देखो सिंपल सा ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो नाउ टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, क्या क्या है इसमें। You have 50 by s plus 1 times s plus 2। तो इसमें क्या है, so option A I'll give you, we have 0 poles and gain। B, we have gain, we have pole। Option C, we have gain, we have 0। तो इस सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इसमें क्या क्या है, Gain and गेन एंड पोल, राइट, पोल्स, वेरी गुड, yes, वेरी गुड। तो इन दिस सिस्टम यू हैव गेन एट, मान लो के है 50 और पोल्स है मेरा -1 एंड -2। ठीक है, वेरी गुड, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अभी नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ दिस, देन वी विल मूव अहेड फॉर बोडे प्लॉट। ओके, चलो इसको रहने देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैन समबडी टेल मी व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन प्लॉटिंग बोडे डायग्राम फॉर दिस वन, टेल मी प्लीज। तो and form the control। वेरी गुड, वेरी गुड। सो फर्स्ट स्टेप विल बी, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं सेपरेट पेज में, सो दैट वी विल डू इट टुगेदर। न्यू स्लाइड्स। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या था, तो जो GFHS था वो क्या था, 50 by s plus 1 by s plus 2, 50 by 1 plus 1 times s plus 2। So step 1, convert in time constant form, convert this transfer function in time constant form। तो कर लेते हैं, 50 by 1 plus s times, इसको ऐसे कर दो 1 plus 0.5 s, ये हो गया। अब ये क्या बचेगा उधर, 25 डिवाइडेड बाय 1 plus s डिवाइडेड बाय 1 plus 0.5 s।
प्लीज टेल मी, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दिस स्टेप? हम स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफाई करेंगे अब। एनी डिफिकल्टी इन दिस स्टेप? चलो तो मैं मान लेता हूँ कि कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। मेरा पूछने का आइडिया ये भी रहता है कि आई ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो Yes. स्टेप टू में क्या होता है? रिप्लेस एस विथ जे ओमेगा, ठीक है। रिप्लेस एस विथ जे ओमेगा, तो हम क्या करेंगे इसको 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा, ये कर दिया हमने। ये कर दिया, इसके बाद straight will go to step 3. Can somebody tell me or help me in finding what is step 3? Upper corner frequencies. Very nice, very nice. So corner frequencies. Step 3. Find corner frequencies. तो इसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगे? 25 बाय 1 प्लस जे ओमेगा है, 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा है। तो इसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगे? 1 बाय 0.5 एंड 1 बाय 1, ठीक है। तो हो जाएंगे इसके 1 और इसके इस तरह से कुछ होंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। स्टेप 4, प्लीज टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड, यू विल नॉट फॉरगेट लेटर। तो बताओ क्या करेंगे स्टेप 4 में? एंड आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज एनीथिंग, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाद में ना हमें वी डोंट हैव टू टेल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक मूव स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बॉडी प्लॉट में ये लिखने का भी जरूरत नहीं है कि स्टेप 1 क्या, स्टेप 2 क्या, स्टेप 3 क्या। स्ट्रेट वी कैन स्टार्ट डूइंग द बॉडी प्लॉट। So please tell me what is the vital step, because this is one of the most important step to find body plot or to draw body diagram. Step 4 please. तो देखो, चलो मैं स्टेप 4 एंड स्टेप 5 कर देता हूँ एक साथ इसको। ये है मैग्नीट्यूड एंड फेज कैलकुलेशन, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और फेज निकाल देंगे, राइट। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बहुत सिंपल है। So what I said, magnitude is your m equals to 20 log g j omega and h j omega, ठीक है। फेज है tan इनवर्स y by x, तो और बेटर यू राइट एंगल जी जे ओमेगा एंड एक्स ओमेगा, विच इज एसेंशियली tan इनवर्स y by x के फॉर्म में आता है। तो प्लीज टेल मी, एनीवन प्लीज। चलो ठीक है, इसको हम स्ट्रेट क्या करेंगे? तो ओके, टेल मी द प्रोसेस, आई जस्ट स्ट्रेट शो यू द प्लॉट। तो इसका क्या करेंगे हम? वंस यू आर एबल टू फाइंड दिस, उसके बाद क्या करेंगे? चलो मान लो कि तुमने ये कर दिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और फेज भी निकाल दिया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल गए। तो शैल वी डायरेक्टली गो टू द प्लॉट? कैसे प्लॉट करेंगे? हमें जब पता चल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है और फेज क्या है, तो वी कैन स्टार्ट डूइंग द प्लॉट। देखो, इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा और इसका फेज पता चलेगा। फेज कैसे करते हैं? दिस
ऊपर में फिर जो वो जीरो है तो क्या होगा, टेन इनवर्स, ऐसे निकालो फिर इसका, कैसे निकालोगे, टेन इनवर्स ओमेगा जे ओमेगा बाय वन इक्वल्स टू ओमेगा माइनस टेन इनवर्स अगेन 0.5 ओमेगा, ये हो जाएगा। तो जब हमें ये पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा इसका है 25, इसका हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.5 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो ये निकल जाता है। तो देखो कितना आसान हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट, फॉर ए गिवन ट्रांसफर फंक्शन प्लीज कन्वर्ट इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, उसके बाद वो पता चल गया तो जे ओमेगा से रिप्लेस कर दो, वो पता चल गया तो फिर उसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल दो, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पता चल गया देन वी विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड फेज। और जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता है कि अभी दे बोथ आर फंक्शन ऑफ योर ओमेगा, है ना, ओमेगा है, तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लो, ओमेगा गेन एंड फेज, एकदम बचपन में जैसे हम ग्राफ प्लॉट करें तो वैसे करेंगे। तो इसका 1 है तो हम 0.1 से स्टार्ट करेंगे, 10 टाइम्स लोअर कर सकते हैं, 0.1 कर दो, 1 कर दो एंड 10 कर दो और 100 कर दो प्रोबेबली इफ यू वांट। तो इसके लिए गेन निकाल दो, यहाँ से फेज निकाल दो, गेन निकाल लेंगे, फेज निकाल लेंगे, गेन निकालेंगे, फेज निकालेंगे, गेन एंड फेज। तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू इंक्लूड आवर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वी शुड नॉट मिस दैट, क्योंकि वहाँ से ही चेंज होने वाला है। तो वी शुड ऑल्सो कंसिडर taking the information on corner frequencies. तो we should make sure that 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो in between you can also take the numbers like 5 and etc. तो अभी ये गेन और फेक प्लॉट का इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, then your things will look like this. So coming to the main slide, yeah. So now you see the change in gain is at 1, change in gain is at 2, यहाँ से एक और चेंज आया है, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 और 2 पे हमने चेंज देखा, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट, राइट, और ये है फेज प्लॉट। तो एक ही में प्लॉट किया, क्योंकि व्हेन यू प्लॉट मैग्नीट्यूड एंड गेन एट वन over other, then it will help you to find GM or PM, gain margin and phase margin. तो देखो, as per the definition, what should be the gain crossover frequency? Gain crossover frequency is a point where your magnitude plot meets 0 dB. ये यहाँ पे phase crossover frequency, can somebody tell what is the phase cross frequency? By definition, phase crossover frequency is a frequency where your phase plot meets at minus 180 degree angle और process 180 degree angle. तो इसमें क्या होगा phase cross frequency? Okay, if you're not sure, I'll tell you the answer. It will never meet. If you see, it will never meet, or theoretically it will meet at infinity. तो मेरा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया इन्फिनिटी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया ये लाइन, ये नंबर, ठीक है। तो अभी हम फेज मार्जिन कैसे निकालेंगे और गेन मार्जिन कैसे निकालेंगे। गेन मार्जिन में तो जो गाइडलाइन है, इट विल बिकम गेन वैल्यू एट दिस विच इज एसेंशियली योर द नंबर। सो फर्स्ट फाइंड दिस PM। तो अभी हमने बता दिया कि इसका जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे, लेट्स से इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग अराउंड, तो इसका फेज मार्जिन कितना होगा, प्लीज टेल मी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फेज मार्जिन है 23 डिग्री। ये कैसे आता है, ये यहाँ से जो इसका वैल्यू है ना, GCF पे जो वैल्यू है वही उसका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है। तो GCF पे जो वैल्यू है वो -23 डिग्री है, सॉरी 23 डिग्री है। और देखो इस प्लॉट में क्या हुआ है कि 0 से स्टार्ट नहीं करके हमने -180 से किया है। अगर ये नहीं करते, यहाँ पे 0 लिखते तो ये +180 होता। तो
you can do both way. Agar if you are seeing at 0 degree, then we always add minus 180 to it, 180 to it essentially. और अगर हम माइनस 180 कर दिए तो वी डोंट हैव टू ऐड बिकॉज माइनस 180 प्लस 180 विल बिकम जीरो. एसेंशियली दिस विल बी योर इफेक्टिव फेज मार्जिन. तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा दैट इज योर फेज मार्जिन. एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन का वैल्यू होगा वो गेन मार्जिन है. एसेंशियली नॉट क्रॉसिंग तो योर जीएम विल बी इन्फिनिटी बिकॉज ये लाइन पता नहीं कहाँ तक जाएगा. ये लाइन पता नहीं इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाएगा. तो एसेंशियली योर जीएम विल बी दिस, यहाँ से यहाँ तक माइनस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड. तो माइनस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी. तो तुम्हारा गेन मार्जिन हो गया इन्फिनिटी और फेज मार्जिन हो गया 23 डिग्री. इन्फिनिटी और फेज मार्जिन हो गया 23 डिग्री. कैन समबडी टेल मी इज दिस स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम? तो दिस सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम क्योंकि बाय डेफिनेशन व्हेन योर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव देन दिस सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम. तो इसी तरह से करके यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ body plot for lot of transfer functions. So I'll also give you some transfer function to exercise. अभी क्विकली we will go to polar plot. polar plot बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है. polar plot में क्या होता है ना कि बॉडी प्लॉट में हम क्या करते थे कि मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट अलग अलग करते थे. ये क्या है मैग्नीट्यूड और फेज का ही कॉम्बिनेशन है. दैट्स व्हाई इट विल बिकम लाइक अ सर्कुलर प्लॉट और polar sort of plot. So polar plot is a plot which can be drawn between magnitude and phase. Magnitude और phase के बीच में ये draw होता है. The magnitudes are represented by normal value only. So polar plot form of this one. I mean ये हमने देखा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये मैग्नीट्यूड होता है और ये फेज होता है. अभी करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड के लिए फेज क्या है ये हमें दिखता है पोलर प्लॉट में. एंड पोलर प्लॉट विल लुक लाइक दिस. दिस इज योर पोलर प्लॉट. सो दिस इज योर गेन एंड दिस इज योर फेज. तो जैसे 5 के लिए 30 डिग्री है तो ये यहाँ पे आ जाएगा. 5 के लिए 30 डिग्री है तो इस पॉइंट पे. तो इस तरह से. तो वंस यू नो इन प्रीवियस केस ऑल्सो एज आई सेड ओके. तो डोंट वरी. पहले हम एक चार्ट बनाएंगे. जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, गेन है और फेज है. तो इसमें क्या करते हैं कि हर एक गेन के लिए हर एक फेज होगा. तो यू सेलेक्ट गेन एंड फेज. तो जो करस्पॉन्डिंग गेन का फेज होगा 5 dB पे जैसे मैंने बोला 30 डिग्री है तो यू प्लॉट इट हियर समथिंग लाइक दैट. So your polar plot is a plot which can be drawn between magnitude and phase angle which is varying from 0 to infinity. You take omega from 0 to infinity and for that omega whatever your gain is there you can assign, right? So with this we complete our frequency response analysis unit. And of course in polar plot I mean it's all about the practice. Bode plot is also all about the practice. So what you can do, you can take a transfer function from internet, or if you type a command Bode in MATLAB, Bode is also used to plot polar plot. So this is Bode MATLAB command. Please explore. This is not very important for this course, but yes, it is important for your further knowledge. If you are willing to go to industry, you are willing to work as a control engineer, or you want to appreciate the subject, then yes, Bode command is there in MATLAB. So one day I'll try to introduce you to the control system with MATLAB. Then I'll talk about the R locus, root locus के लिए Bode है इसके लिए. You also have Nyquist polar as a command by which you can execute. अगर तुमने लिखा ये Bode BODE और ये TF यहाँ पे डाल दिया MATLAB में. I'm sorry about this lag. So essentially Bode, if you type in MATLAB, you will see the whole help portal, and Bode transfer function gives you the Bode plot of this transfer function, that particular transfer function. You can find gain margin and phase margin. Like that you can also plot polar plot. So very quickly we will try to
I don't know. So just review what we have studied in past few lectures, or essentially in this unit. Okay, so it's here. So in syllabus we saw under Bode plot we talked about introduction, concepts of frequency response analysis, graphical tool is a Bode plot. We also learned about the Bode plot construction, and then we talked about the polar plot, right? So with this we end our unit 6. But of course, you have any doubt, you can always ask me. And as I said, you can find suitable transfer function from internet. Try to do exercise on Bode plot and polar plot, and I will try to see if I can send you few problems to practice. So any doubts so far? So if you don't have doubt, then we will meet on next class Wednesday on our class time 11:45. So thank you so much for attending the class. Hope to see you all in the next class where we will start new unit and we will learn about the concepts of this modern control system. Okay. So thank you so much.